Hello, student. This is your first chapter in civics, that is the name of democracy. In this chapter, we will discuss about democracy and try to understand what is the importance of democracy in any country. Okay, let's see. Let's see. The word democracy is derived from the Greek word demokratia. What is the word? Democratia. Democratia. That means the rule of people. That means the rule of people. It was found from demons, which means people, and creds, which means power of rules. Okay. Democratia. Okay. Demos means people, and kratia means power or rule. Okay. The completely sense rule of the people. Hence, democracy is the rule of people or by the elected representative under the free electoral system. Okay. Next, freedom and democracy. Most countries of Asia and Africa, and I say Africa, any country that has been a slave of some one or another after independence, they change the country on its form. They believe that their laws, constitution, democracy, etc., etc. But most of the Asia and Africa's country which had been colonies of European power, okay, such as Britain and France, adopted a democratic form of government after gaining independence. इन केस हम ये समझ सकते हैं कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी एशिया और अफ्रीका की जो यूरोपियन पावर के अंडर में थी, और जैसे ही वो आज़ाद हुई, जैसे ही वो इंडिपेंडेंस करती हैं, तो वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ले लेती है उनकी गवर्नमेंट. ओके, मतलब जैसे ही जब तक आज़ाद नहीं होती, जब तक वो जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक नहीं है. इंडिपेंडेंस के बाद वो कंट्री जो होती हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है अडॉप्ट कर लेती हैं. इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ ब्रिटिश 1947 एंड बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इंडिया भी जो है 1947 में आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स से, और उसके बाद वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना. द नेबर्स ऑफ इंडिया सच एज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार हैव मिक्स्ड रिकॉर्ड थ्रो. Okay, mixed record since independence they have experienced different form of government, not only one type of government, they experience different types of government such as democracy, military, dictatorships, and so on. And we have to discuss the different types of the government. Okay, let's see different type of government. Okay, monarchy. What is the monarchy? A hereditary form of government by a single ruler. A hereditary form of government by a single ruler, king, queen, emperor. It was the most common form of government during the medieval period. देखिए क्या होता था मोनार्ची में, क्या होता है हम नहीं समझ सकते हैं कि जो है कोई एक सिंगल रूलर की जो हेरिडिटरी, मतलब कि उसी के वंश आगे बढ़े. जैसे कि हमने मुग़ल अभी टाइम्स में पढ़ेंगे तो बड़ा से अच्छा सा सिस्टम है कि जो है पहले बाबर, फिर उसका बेटा जो है बाबर का बेटा हुमायूं, फिर उसके फिर आएगा अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगज़ेब. तो इस टाइप से जो आपका चल रहा है हेरिडिटरी, उनके बेटे, तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम लोग मोनार्ची बोलते हैं. ओके, इस टाइप की गवर्नमेंट क्या बोलते हैं? ये हम लोग मिडीवल पीरियड में काफ़ी देखने को मिलता है कि मिडीवल पीरियड में हम लोग दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और ये मुग़ल एम्पायर में देखते हैं. ठीक है, टुडे देयर आर अ फ्यू मोनार्ची लेफ्ट इन द वर्ल्ड. लेकिन आज भी दुनिया में बहुत बची हैं, थोड़ी बहुत, हर जगह नहीं लेकिन थोड़ी बहुत हैं. जैसे कि सऊदी अरब, यमन, यहाँ पे मोनार्ची चलती है. ठीक है, यहाँ पे उन्हीं का बेटा जो है वही शासन करता है, उन्हीं का ही रूल चलता है. फिर वो मर जाएंगे तो उनका बेटा हर रूल करेगा. ओके ओके, now talking about discussing dictatorship. Okay, government by the person or group of people. A government by a person or group of people, not hereditary, but government by person or a group of people. ठीक है, who has seized power by force, often military dictatorship. Example Germany under Hitler. Okay, current day म्यांमार, पाकिस्तान अंडर द रूल ऑफ जनरल जियाउल हक. तो ये सब कंट्रीज़ कौन से डिक्टेटरशिप के अंतर्गत है.
ठीक है। ये लोग मिलिट्री के अंडर में सब अपना काम करते हैं। ओके, मिलिट्री इनकी सब जो काम करती है, कोई ग्रुप वर्क करेगा, कोई एक आदमी काम करेगा। उसके बाद बात आती है डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, देखो। गवर्नमेंट बाय द पीपल समटाइम डायरेक्टली और समटाइम इनडायरेक्टली थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों का रिप्रेजेंट करती है, चुनाव करती है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, ठीक है। तो देखिए, दो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं आपके, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया जो है ये बिगेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे पुरानी है। तो आप लोग को ये जानना पड़ेगा। ओके, तब जो अब हम देखते हैं कि डिफिनीशन जो होती है डेमोक्रेसी की, वो अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ओके, काफ़ी। तो हम इनकी जो ये फेमस बहुत ही डेमोक्रेसी की डिफिनीशन है वो काफ़ी मानी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। द वेल नोन डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय अब्राहम लिंकन, उन्होंने क्या बताया था, देखिए। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। व्हाट इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आपको ध्यान रखना है, लोगों का, लोगों से और लोगों के लिए, सब डेमोक्रेसी उसी के लिए होती, लोगों के लिए ही होती, लोगों द्वारा चलाई जाने वाली, लोगों के लिए, और लोगों का हर चीज़ भी हम बताना पड़ेगा कि जो है मतलब कि कम्प्लीटली ये पीपल पे ही, उसी के उन्हें बिहाफ पे उन्होंने बताया था। ओके, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बारे में। ओके, और गोल्स एंड डेमोक्रेसी, और उसके बाद फिर हम लोग क्वालिटी पे आएंगे सारी। उसके बाद फिर आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा।